أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایسی مجلس میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم قرآن فرماتے تھے تو پھر اپنے سارے گھر والوں کو جمع کر اجتماعی دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ اس موقع پر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا قرآن شریف پورا ہوتا تو وہ بھی اپنے گھر والوں کو جمع کر دعا کرتے اور فرماتے کہ ایسی مجلس کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس مہینے کا کتنا اہتمام تھا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رجب و شعبان کے جو ہمارے مہینے ہیں ان دو مہینوں میں تو ہمیں برکت عطا فرما، اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرماتے وبلغنا رمضان، اور ہماری زندگی میں ایک رمضان اور جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے تک جو ہے وہ ہمیں پہنچا دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ اور آپ کے یہاں اس مہینے کا اتنا اہتمام تھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے ہیں اور پھر اس مہینے کے فضائل، احکامات، عبادات، اعمال بتاتے کہ اس مہینے میں ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو یکدم بیان کے دوران آپ نے فرمایا ماذا یستقبلون وماذا تستقبلون، یہ قوم تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم کس کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہو۔ پھر خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا ماذا یستقبلون وماذا تستقبلون، کہ تمہارے پاس کون آ رہا ہے اور تم کس کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہو، اور پھر آپ خاموش ہوئے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرمایا ماذا یستقبلون وماذا تستقبلون، یہ کون تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم کس کے پاس جا رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نزل، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا عدو حذر، کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ خیر و برکت اور عظمت والا مہینہ جو ہے وہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اس مہینے کا جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اہتمام تھا اور اتنا اللہ کے رسول جو ہے اس مہینے کو اہمیت دیتے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے سامنے ایک مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اگر اللہ کو ہمیں جہنم میں ڈالنا ہوتا، اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تھوڑی چاہتے ہیں کہ میں انہیں جہنم میں ڈالوں، میں انہیں جو ہے وہ عذاب دوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، میرے سارے بندے میری جنت کے اندر آ جائیں۔ اللہ کی چاہت تو یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ بڑی خیر و برکت کا جو ہے وہ مہینہ ہے۔ روزانہ افطار کے وقت 10,000 جہنم کے قیدی
अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से आज़ाद करते हैं। यकम रमज़ान से लेकर रोज़ाना इफ्तार के वक़्त 10,000 जहन्नमियों को आज़ादी जो है वो दी जाती है। फिर आखिरी इफ्तार के मौके पर पूरे महीने में जितने लोगों की मग़फ़िरत हुई है, इतने लोगों की मग़फ़िरत अल्लाह ताला उस आखिरी इफ्तारी के वक़्त जो है वो करते हैं। तो कितनी तादाद इस महीने में अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से जो है वो आज़ाद करते हैं और अल्लाह उनके लिए जो है वो जन्नत का जो है वो फैसला करते हैं। तो ये महीना जो है वो अजर व सवाब नेकियां कमाने का जो है वो महीना है। अब नेकी जो है, एक नेकी तो ये है कि हम अमल करें, अल्लाह उसके बदले में अजर व सवाब दे, और एक अजर व सवाब ये है कि खुद अल्लाह अपने जिम्मे ले ले कि मुझ पर अल्लाह पर कोई चीज़ लाजिम नहीं है, लेकिन अल्लाह खुद अपने ऊपर किसी चीज़ को लाजिम कर ले, ये उसी इख्तियार है। अल्लाह किसी अमल पर ये कहे कि मेरे जिम्मे है इनको अजर देना, सवाब देना, तो वो कि खुद अल्लाह जिम्मे ले ले, इसके लिए अल्लाह ने 3 आमाल जो है वो बताए हैं। जो मुसलमान इन 3 आमाल को करेगा, अल्लाह के जिम्मे उसका अजर और सवाब जो है लाजिम हो जाएगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेंगे कि आ जाए वो सारे लोग कि जिनका अजर मेरे जिम्मे है, और आज मैं उन्हें जो है वो अजर और सवाब जो है वो अता करूँगा। जब अल्लाह ताला किसी के अजर और सवाब को अपने जिम्मे ले ले, तो अल्लाह अजर और सवाब जो है वो हमें देकर नहीं देंगे। अल्लाह अजर और सवाब अपनी शान के मुताबिक, अपनी आज़मत के मुताबिक जो है वो अल्लाह अजर और सवाब जो है वो अता फरमाएंगे। इसलिए ऐसे अजर के मुकाबले में कोई गुनाह गालिब आ ही नहीं सकता है, जिस नेकी के लिए अल्लाह अपने जिम्मे लाजिम ले ले कि मुझे इन लोगों को जो है ये नेकी और ये अजर और सवाब जो है वो देना है। कफ़ा बिल्लाहि हसीबा, जब अल्लाह जिम्मे ले ले कि मेरे ऊपर लाजिम है इनको अजर और सवाब देना, तो अल्लाह का अजर और सवाब के मुकाबले में कोई गुनाह जो है वो गालिब नहीं आ सकेगा। तो ये अल्लाह का फैसला होगा कि अल्लाह इन्हें जन्नत देना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ने अपने जिम्मे इनका अजर और सवाब जो है अपने ऊपर जो है वो लाजिम किया है। उनमें से पहला आदमी वो है जिसका अजर और सवाब अल्लाह के जिम्मे ही, फअजरुहु अलल्लाह, अल्लाह के जिम्मे ही उनका अजर और सवाब देना। उनमें से पहला आदमी वो है जो रमजान मुबारक को सही आदाब के साथ गुजार लेगा, जो रमजान मुबारक को सही आदाब के साथ गुजार लेगा। अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के जिम्मे है कि अल्लाह इनको अजर और सवाब दे। अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मेरे अजर और सवाब जो है वो दूंगा, रमजान मुबारक को सही आदाब के साथ गुजार ले। एक रमजान तो भी और आप गुजार रहे हैं कि रोजा भी रखा हुआ है और जो है गुनाह भी हो रहे हैं, नाफरमानी भी हो रही है, झूठ भी बोल रहे हैं, ग़ीबत भी कर रहे हैं, गलत तोड़ भी रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, मुसलमानों को तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं। तो देखो, इस रमजान पर अल्लाह का वादा नहीं है। अल्लाह का वादा इस रमजान पर है कि रमजान को सही आदाब के साथ जो रमजान के महीने को गुजार लेगा। अल्लाह ताला जैसा चाहते हैं कि रमजान के दिन कैसे गुजरे, रमजान की रातें कैसे गुजरे, जो ऐसे अपने दिन और रात को गुजार लेगा, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के ऐसे शख्स के लिए अजर और सवाब अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम जो है वो कर लिया है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जिसके लिए अल्लाह अजर और सवाब लाजिम कर ले, अब ये शख्स जहन्नम में जो है वो नहीं जाएगा। अल्लाह का अजर और सवाब इस मुसलमान के लिए काफी हो जाएगा और अल्लाह अजर और सवाब अपनी शान वाला जो है वो अता करेंगे। तो पहला शख्स जिसका अजर अल्लाह के जिम्मे लाजिम हो जाता है वो ये शख्स है जो रमजान मुबारक को सही आदाब के साथ जो है वो गुजार लेगा। अल्लाह इसे ऐसा अजर अता फरमाएंगे कि जो अजर इसे है, जो अजर इसे जन्नत तक पहुंचाने वाला होगा। और दूसरा आदमी कौन है कि जिसके लिए अल्लाह के जिम्मे लाजिम हो जाता है उसको अजर और सवाब देना। वो आदमी वो है जो सब्र करने वाला है, जो साबिर है, सब्र करने वाला है। सब्र करने वाले के लिए अल्लाह के जिम्मे लाजिम है, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मैं इसे अजर और सवाब दूंगा।
अब सब्र के जो है वो 3 दर्जात हैं। सब्र के जो है वो 3 दर्जात हैं। सबसे अदना दर्जा सब्र का तो ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई बीमारी आए, कोई हादसा आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए और जो है कोई गम आ जाए, कोई मर जाए, हादसा हो जाए, जो है वो हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इस तरह की जो परेशानी आती है, इन परेशानियों पर सब्र करना ये सब्र का सबसे कम से कम जो है वो दर्जा है कि जिंदगी में जो परेशानियां मुसीबतें आए आदमी उस पर सब्र कर ले, शिकवा न करे, शिकायत न करे, अल्लाह के फैसले पर एतराज न करे। ये सब्र जो है, इस सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी मुसलमान को बीमार कर दिया है, अब इसके शिकवे शिकायत से तो वो बीमारी हट नहीं सकती है। किसी का करीबी रिश्तेदार मर गया है, उसका गम इस पर आ गया है, अब ये गम शिकवे शिकायत से दूर नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो सब्र का दर्जा है, ये सबसे कम दर्जा है। सब्र के अलावा अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर अल्लाह ने हमारे लिए कोई फैसला कर दिया है, अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है और वो क्या है? सब्र वाला है। ये सब्र का सबसे निचला दर्जा है। और सब्र का इससे ऊपर का दर्जा जो है वो ये है कि आदमी गुनाहों से अपने आप को बचा ले। गुनाहों से आदमी अपने आप को बचा ले। अब सुबह फजर के वक्त नींद आ रही है, ये नींद को कुर्बान कर कर फजर की नमाज के लिए मस्जिद के अंदर चला जाता है। सर्दी है, पानी ठंडा है, इसे वुजू करना है, दिल नहीं चाहता है कि मैं ठंडे पानी से वुजू करूं, लेकिन इस गुनाह पर ये सब्र करता है और ठंडे पानी से जाकर जो है वुजू कर लेता है। ख्वाहिश, दिल चाहता है रमजान है रोजा न रखूं, लेकिन ये इस गुनाह पर जो है रुक जाता है, इस पर सब्र कर लेता है और रोजा जो है वो रख लेता है। ये सब्र का दूसरा दर्जा है। अपने आप को गुनाहों से बचाते रहना, इस शख्स का अजर भी अल्लाह के जिम्मे लाजिम हो जाता है। और सब्र का सबसे आला दर्जा जो है वो ये है कि आदमी नेकियों पर जम जाए, नेकियों पर इस्तिकामत इख्तियार कर दे। कि जो है वो अल्लाह ने जिन अहकामात के करने का कहा है, जो अहकामात करने के लिए दिए हैं, ये मुसलमान उन अहकामात पर सब्र करे, यानी उस पर जो है वो इस्तिकामत इख्तियार करे और सारे उन अमाल को करे जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये सब्र का सबसे आला दर्जा है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, ये सब्र का सबसे आला दर्जा है कि आदमी दीन पर जम जाए, दीन पर डट जाए, जो करने के आमाल हैं वो 100% जो है वो आमाल को करे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, दूसरा आदमी वो है जो सब्र करता है, सब्र के इन 3 दर्जात को इख्तियार करता है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर अल्लाह के रसूल को सुनाया, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। आपकी उम्मत में जो एक नेकी करेगा, अल्लाह के दरबार में ये 10 नेकियां जो है वो शुमार होंगी। पहली उम्मतों के लिए भी अल्लाह का यही ज़ाब्ता था, यही कानून था, एक नेकी 10 नेकियां जो है वो शुमार होती थी। यही ज़ाब्ता अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, जो एक नेकी करेगा उसे हम 10 नेकियां जो है वो शुमार करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने हाथ उठा लिए, रब्बी जिद उम्मती, रब्बी जिद उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकियों के अजर व सवाब को और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, और बढ़ा दे। तो अल्लाह ताला ने दूसरी आयत जो है वो नाजिल की।
اور کیا کہا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ ایک جو ہے اللہ کے دربار میں اس امت کی ایک نیکی 700 نیکوں کے برابر جو ہے وہ شمار ہوگی۔ اللہ کے رسول نے پھر اللہ سے دعا کی، رب زد امتی، میری امت کے جو ہے وہ اجر کو بڑھا دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تیسرا اللہ کا حکم لے کر آئے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جو اس دنیا میں صبر کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو اس دنیا میں مصائب اور غموں پر صبر کرنے والے ہیں، جو اس دنیا میں اللہ کے دین پر جو ہے وہ جمنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر و ثواب بغیر گنتی کے دیں گے، بغیر حساب جو ہے عادت اللہ ختم کر دیں گے۔ 1 10,000 لاکھ کروڑ اللہ اس کو ختم کر دیں گے، اور بغیر گنتی کے اللہ ایسے انسان کو اللہ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ اسے ایسا اجر و ثواب جو ہے وہ دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سومو وصبرو، سومو وصبرو، روزے رکھو اور صبر اختیار کرو۔ یہ مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، روزے رکھو اور صبر اختیار کرو۔ جو صبر کے 3 درجات پر پورا اتر آئے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا آدمی جس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، ومن عفا فاصلح فاجره واجره، ومن عفا واصلح فاجره على الله۔ تیسرا آدمی وہ کیا ہے؟ ومن عفا واصلح، کہ وہ دنیا کے اندر درگزر کا معاملہ کرتا ہے، دنیا کے اندر معافی کا معاملہ کرتا ہے، واصلح، اور صلہ رحمی اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یہ اسے معاف کر دیتا ہے، کوئی اسے ستاتا ہے یہ اسے معاف کر دیتا ہے، کوئی اسے گالی دیتا ہے یہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ومن عفا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں دوسرے کو معاف کرنے میں جلدی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ بھی ایسے شخص کو فوراً جو ہے وہ معاف کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، اگر کوئی کسی کی کمی زیادتی کو معاف کر دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضامن ہوں کہ میں اسے اللہ کی جنت میں محل دلاؤں گا۔ کیا کرے؟ پڑوسیوں کی تکلیف سے، بھائیوں کی تکلیفوں سے، عزیز رشتہ داروں کی تکلیفوں سے، اولادوں کی تکلیفوں سے، بیوی کی تکلیفوں سے اگر کوئی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف آتی ہیں، یہ انتقام نہیں لیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ کے لیے معاف کیا، میرے اللہ کے لیے معاف کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے حق پر ہو لیکن جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، انا زعیم، میں اس کے لیے ضامن ہوں، میں اسے اللہ سے جو ہے وہ جنت دلاؤں گا، میں اس کا ضامن ہوں جو کیا کرے گا؟ دوسروں کو معاف کرے گا، وَأَصْلَحَ، اور کیا کرے گا؟ اور جو ہے وہ صلہ رحمی کرے گا، رشتے توڑے گا نہیں، قطع تعلق نہیں کرے گا، بات چیت بند نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے کیا کرتا ہے؟ لڑنے والے سے بھی صلح رکھتا ہے، تنگ کرنے والے سے بھی صلح رکھتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور صلح، اور جو ہے رشتہ داری کو، قرابت داری کو، اور جو ہے اس پر جو ہے وہ قائم رہتا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس شخص کے لیے بھی اللہ کے ذمہ اجر لازم ہو جاتا ہے اس شخص کا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ مہینہ اجر و ثواب کا ہے۔ 3 آدمی ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔ پہلا آدمی کون ہے؟ جو رمضان کو صحیح آداب کے ساتھ گزارے گا، اللہ کے ذمہ ہے اسے ثواب دینا اور اسے جو ہے وہ بدلہ دینا۔ اور دوسرا آدمی کیا ہے؟ دوسرا آدمی
जो सब्र के 3 दर्जात को इख्तियार करता है, अल्लाह के जिम्मे इसका अजर लाजिम हो जाता है। और तीसरा आदमी जो माफ करता है, रिश्तेदारी कराबतदारी को कायम रखता है, रिश्तों को कायम रखता है, उनके हकूक अदा करता है। तकलीफें आती हैं खानदान की तरफ से, घरों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, अहबाब की तरफ से, और ये क्या करता है, माफ कर देता है। किसी को नाराज नहीं करता, किसी से बदला नहीं लेता, किसी से इंतकाम नहीं लेता, और रिश्तों को तोड़ता नहीं है, कराबतदारी को तोड़ता नहीं है। ये तीसरा शख्स है कि जिसके लिए अल्लाह के जिम्मे जो है अजर देना इनके लिए जो है वो लाजिम हो जाता है। जब अल्लाह अजर देंगे तो फिर जो है अल्लाह के अजर के मुकाबले में कौन सा गुनाह जो है वो वज़नी हो सकता है। मिसाल के तौर पर 2 भाई हैं, उनका झगड़ा हो रहा है एक मकान पर। एक भाई कहता है ये मेरा मकान है, दूसरा भाई कहता है ये मेरा मकान है। हुकूमत वक्त ने ऐलान कर दिया कि जो अपने हक से दस्तरब, इन दोनों में से जो अपने हक से जो है अपने हक को छोड़ देगा, हुकूमत ऐलान करती है इन दोनों भाइयों में से जो अपने हक को छोड़ देगा, हम उसे इस्लामाबाद की आला कॉलोनी के अंदर इतना बड़ा बंगला देंगे, इतना खुला मकान देंगे, उस बंगले में ये होगा, ये होगा, ये होगा। जो इन दोनों में से पहले अपने हक से जो है वो हाथ उठा ले। तो अब आप बताइएगा दोनों में से सबसे पहले कौन हाथ उठाएगा? फिर इनका इसमें झगड़ा होगा क्योंकि पहले मैंने हाथ उठाया है, वो कहेगा मैंने हाथ उठाया है। क्यों? इसलिए कि जिसने पहले हाथ उठाया है ये हमें थोड़ा सा मकान इसने छोड़ा है, हुकूमत कह रही हम तो ये इस्लामाबाद में देंगे, ये 1000 फुट का है, हुकूमत कह रही हम 20,000 फुट का तो ये बंगला इस्लामाबाद में देंगे। तो अब ये दोनों लड़ेंगे कि मैंने पहले माफ किया है, पहले मैंने अपनी बात से रुजू किया है। और अगर जो है इस्लामाबाद में मकान मिल गया तो ये कितना अर्सा उस मकान के अंदर रहेगा मेरे भाइयों, कितना रहेगा? कान्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा, एक सुबह रहेगा, ये एक शाम रहेगा। क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन क़ालू लबिसना यौमन औ बअद यौमिन फस्अल आदीन क़ाल इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुंतुम ता'लमून। ये इस्लामाबाद के मकान में कितना अर्सा रहेगा? एक दिन रहेगा। ये एक दिन का जो है एक दिन का कुछ हिस्सा रहेगा, उसके बाद क्या होगा? मौत आएगी और ये बंगला भी उसका क्या हो जाएगा? उससे छूट जाएगा। बंगले के अंदर जो बागीचे लगे हुए थे वो भी इसके जो है वो चले जाएंगे। यहाँ कौन जमानत ले रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमानत ले रहा है। अरे यहाँ हुकूमतें आए दिन ऐलान करती हैं, फिर उस ऐलान को पूरा नहीं करती हैं। अगर पूरा नहीं कर दे, बंगला दे भी दें तो बंगला मौत तक जो है ये उसमें रहेगा, मौत आकर इसे इस बंगले से जुदा कर देगी। यहाँ कौन जमानत ले रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत ले रहे हैं। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा सच्चे जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। ये हो नहीं सकता कि ज़ात अल्लाह के रसूल हो और फिर उस जमानत की बात को अल्लाह के रसूल पूरा न करे, ये हो नहीं सकता है। जो अपने हक को छोड़ देगा झगड़े से, लड़ाई से बचने के लिए, अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं ज़ामिनों से जन्नत में मकान दिलाऊंगा। अल्लाह जो है हम में से किसी ने भी भाइयों में झगड़ा नहीं हो, चलो ये मकान तुम ले लो और मैं इस मकान से हाथ उठा लेता हूँ। अल्लाह के रसूल जामिन बन गए हैं जन्नत में। अल्लाह के रसूल इसे बंगला दिलाएंगे। जन्नत का बंगला इस्लामाबाद के बंगले की तरह होगा। इस्लामाबाद का बंगला तो ईंटों से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, बजरी से बना हुआ है। और जन्नत के बंगले ईंटों से नहीं बनते हैं, जन्नत के बंगले बजरियों से नहीं बनते हैं, जन्नत के बंगले रेतियों से नहीं बनते हैं, जन्नत के बंगले सोने से बनते हैं, चांदी से बनते हैं, याकूत से बनते हैं, ज़मरुद के बनते हैं। उसकी एक ईंट सोने की होती है, एक चांदी की होती है, एक याकूत की होती है, एक ज़मरुद की होती है। जन्नत के बंगले ये 20,000 फुट के नहीं होते हैं। जन्नत के बंगले तो ऐसे होते हैं कि जिस एक बंगले के अंदर जो है वो 70 मकान होंगे और हर मकान के अंदर 70 बेड लगे हुए होंगे और हर बेड पर 70 तरह की चादरें जो है वो बिछी हुई होंगी। मेरे भाइयों बताओ, ये मकान एक दिन के लिए मिला है, 2 दिन के लिए मिला है, 1 साल के लिए मिला है, या जो है वो 10 साल के लिए मिला है? 10 साल के लिए मिला है। 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 10
बता दो सही, कोई नहीं बोले, आप तो बोल दो। हमेशा के लिए। जाहिर बात है कि जन्नत का जो मिलेगा वो हमेशा के लिए मिलेगा। जन्नत का जो है अल्लाह ताला जन्नत वालों से कहेंगे या अहल जन्नह फयतलिऊन, जन्नत वालों आओ, सारी जन्नत वाले जो है बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो जन्नत अल्लाह ताला जन्नत वालों से पूछेंगे कब लबिस्तुम फिल अर्द, कितना सा हमीदपुरा में गुजारा था। कालू रब्बना लबिसना यौमन औ बअद यौम, ये अल्लाह हमने दिन का कुछ हिस्सा गुजारा था। अल्लाह ताला फरमाएंगे निअम मा तजरतुम फी यौमिन औ बअद यौमिन करामती व शराफती व रिज़ाई, अरे तुम कितने अक्लमंद लोग थे, दिन का कुछ हिस्सा ऐसा गुजार कर मेरे पास आ गए हो। आज तुम एहसास के मुस्तहिक हो रहे हो, इकराम के मुस्तहिक हो रहे हो, मेरी रजा के मुस्तहिक हो रहे हो, मेरी जन्नत के मुस्तहिक हो रहे हो। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या ऐलान करेंगे या अहल जन्नह खालिदीन फीहा अबदा, जन्नत वालों ये तुम्हें हमेशा के लिए जन्नत मिली है, न तुम्हें मौत आएगी, न तुमसे मकान छीने जाएंगे, मकान भी हमेशा के लिए है, तुम भी हमेशा के लिए हो। तो अल्लाह इस माफ करने पर, हक पर होते हुए लड़ाई से बचने के लिए अपने हक को छोड़ देगा। जामिन अल्लाह के रसूल हैं जो हर हाल में जमानत पूरी करेंगे, और जो बदला मिलेगा वो हमेशा के लिए मिलेगा, वहां मौत का तस्वुर नहीं होगा। तो ये तीन लोग हैं जो अल्लाह के जिम्मे हैं, अल्लाह इन्हें ऐसा अजर अता फरमाएंगे कि ये अजर इन्हें सीधा जो है वो जन्नत के अंदर ले जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, एक तरफ अल्लाह का अजर हो, एक तरफ मेरे गुनाहों को अल्लाह के अजर से क्या निस्बत हो सकती है। जब अल्लाह का अजर नेकियों पलड़ में आ जाएगा, दुनिया को कोई गुनाह जो है इससे भारी जो है वो नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये महीना सब्र का है, खैरखाई का है, हमदर्दी का है, माफी का है, ये महीना जो है दरगुजर करने का है। तो रमजान मुबारक का ये आखिरी आशरा जो है वो असल है, वो शुरू हो गया है। अल्लाह के रसूल ने आखिरी आशरे में हमें दो बातें सिखाई हैं, दो बातों का इस्तेमाल करना इस आखिरी आशरे में। पहली चीज क्या है, इस आखिरी आशरे में शबे कदर को तलाश करना है। आज से जो आशरा शुरू हुआ है इसका पहला मकसद क्या है, इस आशरे में हमने शबे कदर को जो है वो तलाश करना है। अल्लाह के रसूल घर से आए और देखा बस में दो आदमी झगड़ रहे हैं। आपने फरमाया शबे कदर का बताने के लिए आया था कि फलानी रात में शबे कदर होती है। इनके झगड़ों की वजह से अल्लाह ने मुझे उस तायीद को भुला दिया है, अब मैं भूल गया हूँ अल्लाह ने किस रात का जो है वो नाम लिया था। फिर आपने फरमाया अशरा आखिरा की 5 रातों में शबे कदर को तलाश करो। अशरा आखिरा की 5 रातों में शबे कदर को तलाश करो। शबे कदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी इंसानियत आई है, हमसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ने किसी कौम को शबे कदर नहीं दी, अल्लाह ने किसी उम्मत को शबे कदर नहीं दी, अल्लाह ने किसी नबी और रसूल को शबे कदर नहीं दी। अगर शबे कदर मिली है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है, और आपके वास्ते से जो है उम्मत को मिली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया बनी इस्राइल में से लोग गुजरे हैं जिन्होंने 80-80 साल जिहाद के अंदर गुजार दिए थे। अल्लाह के रसूल गमगीन हो गए कि मेरी उम्मत की उम्रें 60-65 के दरमियान हैं, वो 80-80 साल तक जिहाद करते रहे। अल्लाह में इब्न कसीर ने लिखा है कि कौम आद का जो बच्चा था वो 300 साल में पूरा जवान होता था। हमारा बच्चा तो 11 साल में जो है वो बालिग हो रहा है, उनका पूरा जो है जवान 300 साल में होता था। अब उस जवान को कितनी इबादत करनी पड़ी है, 300 साल तो जवानी तक उसे इबादत करनी पड़ी है। मौत उसकी कब आएगी, इतनी बड़ी बड़ी उम्रें अल्लाह ने दी थी, इतनी बड़ी बड़ी उम्रें उन्हें इबादत में गुजारनी पड़ी। लेकिन जब इस उम्मत का आया अल्लाह ने कहा नहीं, इनको इतनी मुशक्कत में नहीं डालूंगा, इनसे इतनी इबादतें जो है वो नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि ये पहली उम्मतें अजर और सवाब में बहुत आगे बढ़ जाएंगी, वो 80 साल जिहाद में गुजर रहे हैं, इनके क्यों उम्र 80 साल नहीं है। अल्लाह ने कहा जिब्राइल मेरा महबूब गमगीन हो रहा है,
जाओ सूरह कदर जाकर सुना कर आओ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कहा ठीक है, ये महबूब की उम्मत है, ये 12 घंटे इबादत में गुजारेगी, अल्लाह के दरबार में क्या लिखा जाएगा? इस मुसलमान ने 80 साल इबादत के अंदर गुजार दिए हैं। इस मुसलमान ने 12 घंटे इबादत में गुजारे हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में क्या हो रहा है कि 80 साल इसने इबादत में गुजार दी है। अब अगर किसी मुसलमान को 5 रातें शब कदर की जिंदगी में नसीब हो जाती हैं, तो ये इबादत के एतबार से कितना पेरी उम्मतों से जो है वो आगे जो है वो निकल जाएगा। तो ये आखिरी अशरा का पहला मकसद क्या है? शब कदर को जो है वो तलाश करना है। और शब कदर आखिरी अशरे की भी 5 ताक रातों में तलाश करना है। अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया, अल्लाह ने भुला दिया शब कदर को। बज़ाहिर तो नुकसान की बात है, लेकिन हकीकत में इसी में फायदा है कि अल्लाह ने शब कदर की ताजील उम्मत को भुला दी, अल्लाह के रसूल को भुला दी। इसमें उम्मत के लिए बेहतरी और खैर है। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से जो है दस्तरखान हमारे लिए नाजिल कराओ, अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, आसमान से दस्तरखान आए, खाने लगे हुए हों, हमारे सामने आए और हम दस्तरखान के खानों से खाएं, आप हमारी दस्तरखान उतारें। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसी बातें अल्लाह से नहीं कही जाती कि ये कर, नहीं नहीं, अब दस्तरखान उतरवाएं, हम उसको खाएंगे, वततमइन्ना कुलूबुना, हमारे दिल मुतमइन हो जाएंगे, वाकई अब जो कुछ लेकर आए हैं हक लेकर आए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह ये कौन कह रही है आसमान से दस्तरखान उतारो? अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं दस्तरखान तो उतार देता हूँ, लेकिन दस्तरखान के आने के बाद फिर अगर उन्होंने शरारत और बदमाशी की, लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, अज़ाब भी ऐसा दूंगा कि जिस अज़ाब किसी को नहीं मिला होगा, ऐसा इशारे से ना ऐसा अज़ाब तेरी कौम को दूंगा। अगर दस्तरखान के आने के बाद इन्होंने शरारत की, अब अगर अल्लाह बता देते कि 27 रात शब कदर की है, कितने मुसलमान हैं जो गुनाह के बगैर रह नहीं सकते हैं, कितने मुसलमान हैं जो शराब के बगैर रह नहीं सकते हैं, कितने मुसलमान हैं जो गीबत के बगैर रह नहीं सकते हैं, कितने मुसलमान हैं जो झूठ के बगैर रह नहीं सकते हैं। अल्लाह ने बताया आज शब कदर की रात है, लेकिन ये आदि गुनाहगार हैं, ये नहीं रह सकेंगे, ये शब कदर में गुनाह करेंगे। अरे वहां तो दस्तरखान को उतरने के बाद नाफरमानी की, अल्लाह ने सारी ईसाई कौम को जिन्होंने नाफरमानी की, अल्लाह ने उन्हें खिंजीर बना दिया। क्या बना दिया? अल्लाह ने उन्हें खिंजीर बना दिया। फिर इतने बड़ा मोजा तुम्हें दिखाया, फिर तुम शरारत कर रहे हो। अब अगर इतनी बड़ी शब कदर के आने के बाद फिर कोई मुसलमान इस रात में शराब पीता, चोरी करता, जिना करता, ग़ीबत करता, बुहतान लगाता, जुल्म करता, तो फिर क्या मामला होता अल्लाह ताला का कि मैंने शब कदर इतनी बड़ी रात दी है, फिर ये शरारत कर रहे हैं। कहीं अल्लाह वो फैसला न कर देता जो दस्तरखान के आने के बाद अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के कौम के लिए जो है वो किया। अल्लाह ने बचा दिया हमें, अल्लाह ने बचा दिया। कहीं वो फैसला इस उम्मत के अफराद के लिए भी हो जाता तो ये जो है आज इंसान नजर नहीं आते, ये खिंजीर फिरते हुए नजर आते। इसलिए अल्लाह ने इंसान किया, अल्लाह ने इस सलात को भुला दिया ताकि जो है अल्लाह के उस फैसले से ये उम्मत जो है वो बच जाए। तो इसी में हमारे लिए बेहतरी थी कि अल्लाह ने तायीन को जो है उठा लिया है। एक तो ये काम है अखीरा शरीका कि ताक़रातों को इबादत के अंदर जो है वो गुजारना है। क्या मुश्किल है 5 रातें मगरिब से सुबह सादिक तक जो है इबादत के अंदर गुजारने का मतलब ये नहीं है पूरी रात नमाज पढ़ते रहें। नमाज हो, दुआ हो, तिलावत हो, जिक्र हो, दुरूद हो, इस्तिग़फ़ार हो, सीखना सिखाना हो, मसाइल पूछने हो, इल्म की बात करनी हो, ये सारी इबादत के हुक्म में है।
तो पूरी रात को इन अमाल से जो है वो गुजारना है। एक रात 80 साल के बराबर हो जाएगी। तो मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें। अब पहली रात है 21वीं रात में से आज पहली रात है। अल्लाह का शुक्र है हम एक अच्छी मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, अल्लाह के दीन की बातें कर रहे हैं। ये हमारा वक्त अल्लाह की इबादत के अंदर जो है वो गुजर रहा है। इसी तरह पूरी रात सुबह शाम तक अगर इबादत में गुजार लेंगे, हो सकता है आज की रात शब कदर की हो और अल्लाह एक रात पर हमें 80 साल की इबादत का अता फरमा दे। तो एक तो ये आखिरी अशर करना है, और दूसरा आखिरी अशर में आज एहतिकाफ शुरू हो गया है। तो असल एहतिकाफ का जो सुन्नत है वो मगरिब से जो है वो शुरू हो गया है। एहतिकाफ इस अशरे में इसलिए रखा गया है, देखो मग़फ़िरत का अशरा गुजर गया, रहमत का अशरा गुजर गया, अब आखिरी अशरा जहन्नम से खलासी का है। अल्लाह चाहती है ये सारे मेरे बंदे जो है वो जहन्नम से बच जाए, इसके लिए अल्लाह ने एहतिकाफ दिया है। मुतकिफ गुनाहों से बचा रहता है। एहतिकाफ का माना क्या है? एहतिकाफ का माना ये है कि सबसे फिरकर अल्लाह की तरफ आ जाना, इसका नाम जो है वो एहतिकाफ है। इसलिए मुतकिफ क्या करता है? घर को छोड़ता है, बीवी को छोड़ता है, दुकान को छोड़ता है, सारे जो है अपने धंधों को छोड़ता है, और किसके दरबार में आकर बैठ जाता है? अल्लाह के दरबार में आकर बैठ जाता है कि या अल्लाह अब सारे मसाइल का हल सिर्फ तेरे हाथ में है, अब तुझे राजी करना ये मेरी जिंदगी की मंजिल होगी। इसलिए मेरे भाइयों तीसरा अशरा का अहम अमल जो है वो एहतिकाफ है। और मुतकिफ अगर कुछ भी न करे, एहतिकाफ खुद इबादत है। एहतिकाफ खुद इबादत है। अगर मुतकिफ सो रहा है तो उसकी रात इबादत के अंदर जो है वो गुजर रही है, फिर अल्लाह इसे एक मौका दे देते हैं सारे झंझड़ों से अपने आप को हटाकर ये सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। और अल्लाह की रहमत भी खुसूसी तरफ मुतवज्जो होती है। एक आदमी किसी के दरवाजे पर आकर पड़ जाए, कैसा सख्त दिल हो, फिर उसे रहम आ जाएगा कि ये सुबह से मेरे दरवाजे पर जो है वो बैठा हुआ है। अल्लाह तो मेहरबान है, इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी रहमत बड़ी है, मेरा गुस्सा छोटा है, मेरी रहमत बड़ी है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। गुनाहगारों, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मेरी रहमत से नाउम्मीद ना होना। तो खुश नसीब हैं जो एहतिकाफ के अंदर बैठ गए। लेकिन नफली एहतिकाफ हर मुसलमान कर सकता है। कभी एक दिन का एहतिकाफ कर ले, 2 दिन का एहतिकाफ कर ले, 3 दिन का एहतिकाफ कर ले। आपने सुना है एक दिन का एहतिकाफ जहन्नम से 3 खंदक मुसलमान को दूर कर देता है। एक दिन का एहतिकाफ जहन्नम से 3 खंदक दूर कर देता है। और एक खंदक का फासला मशरिक और मगरिब के दरमियान जितना फासला है, एक खंदक का फासला इतना है। या आसमान और जमीन के दरमियान जितना फासला है, एक खंदक जो है इतने फासले की होती है। तो अगर एक दिन का भी कोई नफली एहतिकाफ के सिलसिले में कर लेगा तो आसमान और जमीन की मुसाफत के बकदर अल्लाह इसे जहन्नम से जो है वो दूर कर देंगे। और ये जहन्नम जो है ये खलासी का महीना है, जहन्नम से खलासी का महीना है। इसलिए चलो दूसरे एहतिकाफ नहीं कर सके, एक दिन का कर लें, 2 दिन का कर लें, 3 दिन का नफली एहतिकाफ कर लें। अल्लाह ने जिंदगी में मुबारक महीना दिया है, पता नहीं आइंदा नसीब होता है या नहीं होता है। खूब अल्लाह से गिरदावे तौबा कर ले, माफियां कर ले। अरे देखो आपके रब ने हामिलीन आर्श फरिश्तों को जमीन पर उतारा हुआ है, जिब्राइल को जमीन पर उतारा हुआ है, आसमान के फरिश्तों को जमीन पर उतारा हुआ है कि रमजान आ गया है, मेरे महबूब की उम्मती तौबा करेंगे और तुम उनकी दुआओं पर जो है वो आमीन कहना। जिसकी आमीन जिसकी दुआ फरिश्ते के आमीन से मिल जाएगी, अल्लाह उस दुआ को जो है वो जरूर कबूल करेंगे। तो क्या खुलासा होगा? ये बरकत वाला महीना है, ये अल्लाह से लेने का महीना है, ये रहमत मग़फ़िरत और जन्नत खलासी का जो है वो महीना है। इसलिए खूब इस महीने से फायदा उठाया जाए, अपने सारी उम्मत के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत का फैसला करवाया जाए। अल्लाह